हाँ जी, वेलकम टू कैरियर रिक्वेस्ट। जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾर्ट ਵਿੱਚ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾर्ट 2 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पार्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, डिटेल ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 10-10 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਲੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫਾਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। YouTube ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਫ q ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0, q ਕੀ ਹੈਗਾ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ and x square plus 13x plus q equals to 0 has integer roots, then how many integer value can q take। देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ equals to 0। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਆएंगे ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟੀਜਰ ਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਨ ਕਿਊ ਟੇਕ, ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ax ਸਕੁਆਇਰ प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ਕੁਆਡ੍ਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ, ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਟ ਨੇ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਰੂਟਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਅਲਫਾ ਕੋਮਾ ਬੀਟਾ, ਤਾਂ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅਲਫਾ प्लस ਬੀਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ b ਬਾय a। ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟਸ क्या ਹੁੰਦਾ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होएगा c बाय a। सम ऑफ रूट होगा माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा c बाय a। इसका मतलब इसके जो भी रूट्स होंगे उन्होंने सम की होएगा। देखो सम की होएगा सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a होंदा हैगा। b दी वैल्यू कितनी हैगी उरे 13, तो उरे आ जाएगा माइनस 13। a दी वैल्यू की x स्क्वायर दे नाल केड़ा नंबर हैगा, x स्क्वायर दे नाल a हैगा, a दी वैल्यू उरे 1 हैगी है, तो उरे आ जाएगा 13/1, तो उरे आ जाएगा माइनस दा 13। ਇੱਥੇ ਇसी ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਮ ਆਫ ਰੂਟਸ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀ ਹੋਵੇ -13 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ -13। ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟਸ ਕਿਆ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟਸ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡ करके दो नैगेटिव नंबर का जोड़ कितना बनना चाहिए -13। ये किवें बनेगा, मैनू जोड़ कितना चाहिए हैगा -13। -13 किवें बनेगा -1 ते -12। ठीक है, -2 ते -11। ठीक है, -3 -10। ठीक है, -4 -9 -5 -8 -6 -7। यही पॉसिबल वैल्यूज ने। दो नैगेटिव नंबरों का जोड़ सानू -13 चाहिए क्योंकि इसके रूट्स की बननगे नैगेटिव। जे उरे प्लस प्लस साइन होवे तो रूट्स नैगेटिव बनते हैं, तो रूट्स जे नैगेटिव होंगे तो दो रूट्स का जोड़ -13 बन रहा है। कि किहड़े ऐसे नंबर पेयर पॉसिबल ने, इन्होंने कहा है इंटीजर। इंटीजर का मतलब की होंदा हैगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो दो नंबरों का जोड़ -13 होना चाहिए। यही पेयर बन रहे -1 -12 -2 -11। कितने पेयर बन गए 1 2 3 4 5 6 6 पेयर बन गए। मतलब क्यू दी कितनी वैल्यूज पॉसिबल ने, 6 वैल्यूज पॉसिबल ने। क्लीयर, क्यू दी 6 वैल्यूज पॉसिबल होंदियां ने। क्लीयर, तुसी पेयर काउंट करने हैं, जिन्ने पेयर होंगे उन्नी वैल्यू क्यू दी होएगी, और क्यू दी वैल्यू की होएगी इन्हां दा प्रोडक्ट बेसिकली। ठीक है, तो इन्ना डीप विच नहीं जाना, तुसी बस कल्ले पेयर काउंट कर लो, जिन्ने पेयर होंगे उन्नी ही क्यू दी वैल्यू वो एग्जिस्ट करेगी। क्लीयर, स्क्रीनशॉट ले लो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो, there is a 60% increase in an amount in 6 year at simple interest, what will be the compound interest of 2,40,000 after 3 year at the same rate। देखो सेम क्वेश्चन मैंने करवा रखा हैगा, ये हैगा अपना इसी शिफ्ट विच आया हुआ है, इसी शिफ्ट विच सेम क्वेश्चन आया हैगा, तो ये थोड़ा होएगा होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा की होएगा होमवर्क होएगा, ट्राई जरूर करना हैगा। क्यों, मैं थोड़ा दिखा देना, हुणी शो कर देना। 60% इंक्रीज हो रही है अमाउंट ते, अपने की पता करना CI 3 साल का 2,40,000 ते, 2,40,000 ते 3 साल का CI पता करना हैगा। जे मैं थोड़ा इसका पहला पार्ट दिखावा, पहला पार्ट आ रहा, एक सेकेंड, कितने आ रहा, देखो सेम
देयर इज अ 60% इंक्रीज इन अमाउंट 5 साल, उरे 5 साल ते हो रहा, उत्थे 3 साल 6 साल ते हो रहा सीगा, ठीक है। उरे आपां ने 3 साल का CI कड्ढना हैगा 14,000 ते, उत्थे आपां ने 3 साल का CI कड्ढना सीगा 2,40,000 ते, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन हैगा, ये पार्ट 1 का हैगा, आ देखो ये पार्ट 1 च आया हुआ है, ठीक है। तो तुसी ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, जिहड़ा पार्ट 1 का क्वेश्चन हैगा। पार्ट 2 का क्वेश्चन सेम हैगा पार्ट 1 का, तो तुसी पहला पार्ट 1 की वीडियो देख लो, उस दे विच जिवें मैंने करवाया हैगा तुसी उवें ट्राई करना। 6 साल का कट लेना, 6 साल का जिन्ना भी सिंपल इंटरस्ट बनेगा, रेट परसेंट आ जाएगी, रेट परसेंट की हेल्प नाल तुसी कंपाउंड इंटरस्ट कर लेना 2,40,000 3 साल ते। क्लियर, मैथड मैंने दस रखा है, तुसी एक बार ट्राई करके कमेंट सैक्शन जरूर दसना, जे नहीं सॉल्व होएगा तो भी कमेंट सैक्शन से दसना, मैं फिर दोबारा दस दूंगा। क्लियर, दसना जरूर। चलिए, विच ऑफ द डिजिट should come in place of @ and hash respectively if the number 54264 @ is divisible by both 8 and 5। देखो मेरे को नंबर हैगा 54264 @ ये नंबर किदे नाल डिवाइड होना चाहिए, बोथ, उरे बोथ लिखा है, बोथ 8 ते 5। देखो जे ये नंबर बोथ 8 ते 5 नाल डिवाइड होएगा, इसका मतलब मैं ये कह सकदा कि लास्ट विच कोई नंबर 5 नाल किवें कदों डिवाइड होंदा, कोई भी नंबर 5 नाल कदों डिवाइड होएगा, जदों उसकी लास्ट दी डिजिट जिहड़ी हैगी या तो 0 होएगी या 5 होएगी, तां ही डिवाइड होएगा। इसका मतलब हैश दी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो देख लेंदे हैं, देखो सारे ऑप्शन विच 0 हैगी, ठीक है, मतलब सारे ऑप्शन पॉसीबल ने। हुण करना की हैगा, हुण 8 दा डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हैगा। देखो कोई भी नंबर 8 नाल कदों डिवाइड होएगा, जदों उस नंबर दे लास्ट दे 3 डिजिट, लास्ट दे 3 डिजिट जो 8 नाल डिवाइड होएंगे तो वो पूरा नंबर 8 नाल डिवाइड होएगा। जे लास्ट दे 3 डिजिट 8 नाल डिवाइड नहीं हो रहे तो नंबर भी डिवाइड नहीं होएगा। तो मैं पहला ऑप्शन चेक कर लेना, लास्ट दे 3 डिजिट, देखो लास्ट दे 3 डिजिट की है 4 @ तो @ दी वैल्यू जे 5 रखांगा, हैश दी वैल्यू 0, तो 450 बन जाएगा। लास्ट दे 3 डिजिट की बन जाएंगे 450। 450 ना कदे भी 8 नाल डिवाइड नहीं होता, तो पहला ऑप्शन तो साडा आंसर होएगा नहीं, ठीक है। चलो, जे मैं @ दी जगह 2 रखा, हैश दी जगह 0 रखा, ये कितना बन गया 420। 420 बोहीमिया वाला नंबर आ गया, 420 गली गली च मुंडे करे मेरी रीस 420, ठीक है। तो 420 जेड़ा हैगा 420 हैगा वो भी 8 नाल डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी कट गई। हुण उरे देखो 4 @ दी जगह 4, हैश दी जगह 0, ये 440 लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है। 440 ना 8 नाल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये 8 नाल डिवाइड हो जाता है। तो अपना आंसर ये हो सकता है, एक बार लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 4 @ 6 हैश दी जगह 0, 460 डिवाइड नहीं होएगा, ठीक है। तो 460 वाला आंसर भी नहीं है, अपना आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 440 जेड़ा हैगा 8 नाल डिवाइड हो जाता हैगा, ठीक है। 55 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करोगे 440 बन जाएगा। तो इसका मतलब की होया कि ऑप्शन सी सैटिस्फाइड करेगी, @ दी वैल्यू 4 ते हैशटैग दी वैल्यू 0 आएगी। क्लियर, वधिया क्वेश्चन सीगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ਇਹਦਾ क्या ही स्क्रीनशॉट लेना। 14th इफ x by y equals to 7/8, देखो x by y ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 7/8, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 7, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 8। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। स्टार्टिंग विच ही क्वेश्चन वधिया वधिया सीगे, हुण विच वाले जेडे 10 क्वेश्चन ने ये थोड़े ईजी क्वेश्चन। देखो एग्जामिनर जो पेपर सैट करता ना किवें सैट करता, स्टार्टिंग विच औखा क्वेश्चन पाएगा, विचाले ईजी पा देगा, एंड विच फिर औखा पाएगा, ठीक है। जो स्टार्टिंग विच औखा क्वेश्चन पाता, बच्चे ने वो औखा क्वेश्चन देखा, वो तो अटैम्प्ट नहीं होया, टाइम वेस्ट हो गया, वो तो दिमाग हो जाएगा खराब। उस तो बाद जो सौखा क्वेश्चन करने की बारी आएगी उस तो वो भी नहीं होना, ठीक है। तो एग्जामिनर इवें ही करता है, पहला औखा फिर सौखा फिर औखा पा देगा, ठीक है। तो उरे x की वैल्यू जब मैं 7 पुट करा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होएगा 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर माइनस 64, ठीक है। ये चीज़ देखने तो बाद ही ना मैं इसनों प्लस नहीं करूँगा। क्यों नहीं प्लस करूँगा, मैं तो वैसे भी नहीं करना सीगा। देखो क्यों नहीं करना सीगा, ध्यान ना समझो। 49 + 64 जो भी होएगा मैनू नहीं पता, कर लांगे पता। 49 - 64, देखो 49 की हैगा 49 अपना छोटा नंबर हैगा, 64 की हैगा अपना वड्डा नंबर। जे छोटे नंबर विचों वड्डा नंबर आप सबट्रैक्ट करांगे तो माइनस का साइन लगता हैगा, यानी जेड़ा भी साडा आंसर होएगा वो नैगेटिव होएगा,
49 छोटा है 64 ਵੱਡਾ है साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि छोटे नंबर तो ਵੱਡਾ माइनस करिए तो नेगेटिव का साइन आता है नेगेटिव का साइन ਕਿਹੜੀ ऑप्शन च डी खत्म क्लियर पूरा कैलकुलेट नहीं करना वो वैसे भी देख के पता लग रहा सीगा x छोटा हैगा y ਵੱਡਾ हैगा छोटा का स्क्वायर माइनस ਵੱਡੇ का स्क्वायर आंसर नेगेटिव विच आएगा नेगेटिव विच बस एक ही ऑप्शन है डी तो कोई है नहीं ऑप्शन क्लियर तो थोड़ी बहुत ना चलाकी भी यूज करनी है ये ऐसा क्वेश्चन सीगा जेड़ा सिर्फ 4-5 सेकंड का कम सीगा बस नथिंग एल्स कला देख के ही दसना सीगा कि हाँ आंसर नेगेटिव आएगा डी ऑप्शन दिख रही है ठीक है वैल्यू पुट करने की लोड़ नहीं सीगी ठीक चल हुण जे मान लो x की वैल्यू जे मैं दे दा 777 y की वैल्यू मैं दे दा 888 मैं हूँ 777 का स्क्वायर कड्डूंगा 888 का स्क्वायर कड्डूंगा मान लो उरे x की वैल्यू जो थानू 777 दे दे y की वैल्यू 888 दे दे आही चीज़ सेम पैटर्न होवे तो ऑप्शन भी इसी तरीके नाल सेट होवे एक ऑप्शन नेगेटिव होवे तो आप वैल्यू थोड़ी ना पुट करांगे आप तो कॉमन सेंस यूज करांगे भी छोटे नंबर तो बड़ा माइनस करांगे तो नेगेटिव आएगा नेगेटिव बस एक ही ऑप्शन है ठीक है तो दिमाग यूज करना है कॉमन सेंस नाम का है कॉमन सेंस कॉमन हैगी नहीं अज के टाइम पे हाँ 15th क्वेश्चन वधिया क्वेश्चन है टू ट्रेन आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर दो ट्रेन ना एक दूसरे वाल आ रही ने ठीक है फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन तो आ रही इवें आ रही ने ठीक है टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द टू ट्रेन आर करंटली एट द सेम लेवल फ्रंट जिहड़ा हैगा सेम लेवल दा हैगा वन हैज स्पीड ऑफ 10 एक दी स्पीड हैगी है 10 मीटर पर सेकेंड ठीक है उसकी लेंथ कितनी हैगी है 120 मीटर ठीक है दूजे की स्पीड हैगी है S2 कितनी 15 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो उसकी लेंथ कितनी हैगी है 100 मीटर तो आपने दसना हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस ईच अदर आपने टाइम दसना हैगा देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होंदा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड जदों भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है भावें वो ऑपोजिट डायरेक्शन च होवे भावें वो सेम डायरेक्शन विच होवे जिहड़ा डिस्टेंस हुंदा है वो दोनों ट्रेनों की लेंथ नूं ऐड करके बनता हैगा तो अपने को डिस्टेंस कितना आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा दोनों ट्रेनों की लेंथ नूं ऐड कर दो ये आ जाएगा 220 मीटर डिस्टेंस आ गया 220 मीटर तो ध्यान नाल सुनना जे कोई दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन विच आन तो स्पीड ऐड हो जाएगी जे सेम डायरेक्शन विच जान तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी मैं उरे लिख देना इस चीज़ को आप रिलेटिव स्पीड का कंसैप्ट कहते हैं तो रिलेटिव स्पीड का कंसैप्ट मैं थोड़ा बाद में दस दूंगा जो आप चैप्टर पढ़ावा चैप्टर की प्लेलिस्ट स्टार्ट करांगे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क इन्हों की भी प्लेलिस्ट आप स्टार्ट करांगे सिलेबस पूरा खत्म करवाएंगे टेंशन ना लो ठीक है तो वो भी मैं दस दूंगा रिलेटिव स्पीड होंगी की है बट हले इन्ना समझो कि जो भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे आप रिलेटिव स्पीड का कंसैप्ट लेना है तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है सेम डायरेक्शन विच रिलेटिव स्पीड आर एस का मतलब रिलेटिव स्पीड होंगी है वो माइनस हो जाती है S2 माइनस S1 तो ऑपोजिट डायरेक्शन विच पूरे ऑपोजिट डायरेक्शन होएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी सेम डायरेक्शन विच माइनस होएगी S2 माइनस S1 ऑपोजिट डायरेक्शन विच प्लस हो जाएगी S2 प्लस S1 तो स्पीड कितनी आ गई अपने को पहले की स्पीड कितनी है 10 दूजे की स्पीड कितनी है 15 यूनिट का ध्यान रखना डिस्टेंस अपना मीटर विच हैगा स्पीड मीटर पर सेकंड विच हैगा तो चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो उरे आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस है 220 हैगा 25 5 के टेबल से जाएगा 44/5 8.8 सेकंड लगणगे ऑप्शन बी क्लीयर इस दे विच बस एक मेन गल ये सी कि थोड़ा रिलेटिव स्पीड का कंसैप्ट पता होना चाहिए बाकी चीज़ा तो सेम ही हैगी तो रिलेटिव स्पीड याद रखना सेम डायरेक्शन विच माइनस होएगी S2 माइनस S1 ठीक है ऑपोजिट डायरेक्शन विच प्लस हो जाएगी तो स्क्रीनशॉट ले लो आप अगले क्वेश्चन से चलते हैं फिर 16th व्हेन एन इंटीजर a इज डिवाइडेड बाय 8 देन इट गिव्स रिमाइंडर 3 कोई इंटीजर हैगा a उसनों आप 8 नाल डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया 3 जे मैं थोड़ा साफ साफ कहां कि रजे एक ऐसा नंबर दसो जिसनों 8 नाल डिवाइड करें तो 3 बचना चाहिए हैगा तो तुसी की कहोगे सर नंबर की बन जाएगा 8 नाल डिवाइड करें तो कितना बचना चाहिए रिमाइंडर का मतलब बचा हुआ समान बचा हुआ नंबर ठीक है बचा हुई चीज़ बचा हुआ नंबर मान लो चीज़ मान लो समान मान लो कुछ भी मान लो जो बच गया वो रिमाइंडर तो 8 नाल डिवाइड करके कितना रिमाइंडर चाहिए हैगा 3 तो नंबर की आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर की आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर की आ जाएगा 8 जमा 3 11 वो नंबर की हैगा 11 यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 11 11 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ 11 ਹੋ ਗਿਆ 19 ਹੋ ਗਿਆ ठीक है 27 हो गया
ਇਹ ਸਾਰੇ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਰੇ 11 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 19 ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 19 ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 11 ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਇਫ 6a ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 8। 6a ਜੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ 6a ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ a ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ a ਮੇਰਾ a ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ 6a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 11 ਇੰਟੂ 6 66। ਹੁਣ ਜੇ 6a ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 8 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ 66 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 8 ਮੱਠੇ 64, रिमाइंडर कितना बच गया 4, ऑप्शन 1 सेकंड रिमाइंडर यार सॉरी 4 के में आ जाएगा 2 आएगा, तो ही मैं कहूँ कि लिखता मैं सही तो क्वेश्चन कर रहा रिमाइंडर आ जाएगा 2, पूरे चंगी तरह लिख देंगे 4 तो 64 माइनस करोगे 2, ऑप्शन है। ठीक है, ये तुसी 19 लेके आप कर लेना ता भी रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ਆਪਾਂ नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। 17 the length of each side of cube is 7 what is the total surface area of cube। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਕਿ मैंने बहुत ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ, YouTube ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਟਵਾਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ 28 ਵੀਡੀਓ ਨੇ 28 ਜਾਂ 29 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਟੋਟਲ 18 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ 18 ਘੰਟੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अलग तो, जिन्हें भी पटवारी के क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर वो भी डिस्कस करेंगे। तो उस तो बाद एवरी वीकेंड पटवारी का मॉक टेस्ट भी आप डिस्कस करेंगे, एक मॉक टेस्ट होएगा पटवारी का। ठीक है, वो मॉक टेस्ट के जिन्हें भी क्वेश्चन होंगे बेस्ट लैवल के क्वेश्चन मैं अपने वालों तैयार करके वो भी डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं दसिया सीगा थानू क्यूब का जे तुसीं प्लेलिस्ट देखी होनी तो थानू पता होना क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होंदा हैगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, वेयर a इज वट साइड ऑफ क्यूब, क्यूब दी साइड नु a कहंदे ने, तां साइड कितनी है 7, 6 इंटू 7 का स्क्वायर 6 गुना 49 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 294 ऑप्शन सी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। The LCM of two prime number a and b is 141, a greater than b। देखो दो प्राइम नंबर ने, ठीक है, दो प्राइम नंबर का LCM क्यों होता है, LCM of prime number is LCM of prime number is their product। उन्हां दोनों प्राइम नंबर का तुसी प्रोडक्ट ले लो, चाहे भावें 2 प्राइम नंबर हो 3 प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर का जिहड़ा LCM होएगा उन्हां दा प्रोडक्ट ही हुंदा हैगा। जिवें 3 ते 5 का LCM कढना है तो 3 ते 5 नूं मल्टीप्लाई कर दो, 7 ते 11 का LCM कढना है तो 7 ते 11 नूं मल्टीप्लाई कर दो, 19 ते 23 का LCM कढना हैगा 19 ते 23 नूं मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 19 23 27 का LCM कढना 27 दा नहीं 19 23 29 इन्हां दा LCM कढना हैगा, तीनों नूं मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्राइम नंबर का LCM उन्हां दा प्रोडक्ट ही आंदा है। तो किहड़े ऐसे दो नंबर ने जिन्हां दा प्रोडक्ट 141 बनेगा, तो हुण 141 जिहड़ा हैगा ये देख के ना ऑब्जर्व कर लो, पता लग जाएगा ये ना 3 नाल डिवाइड होंदा हैगा, 3 दा बेसिकली डिविजिबिलिटी दे रूल भी मैं दस दूंगा थानू एक वीडियो बना के, ये 3 नाल डिवाइड होंदा, फिलहाल इन्ना समझो ये 3 नाल डिवाइड होएगा। तो 141 क्या होंदा 3 गुना 47। ठीक है, 3 नूं जे 47 नाल डिवाइड करा मल्टीप्लाई करा तो 141 बन जाएगा। इसका मतलब 2 प्राइम नंबर किहड़े बन गए, 2 प्राइम नंबर्स आर 3 एंड 47। उस तो बाद उसने क्या ए दी वैल्यू जड़ी हैगी बी तो वड्डी हैगी है, मतलब 47 3 तो वड्डा हैगा, यानी ए दी वैल्यू आएगी अपने कोले 47 ते बी दी वैल्यू आएगी 3। पूछा की हैगा 5b - 2a, 5b - 2a। आंसर अपना की आएगा नेगेटिव, नेगेटिव वाले 2 ऑप्शन ने, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पुट करना पड़ेगा। 5 गुना 3 - 2 गुना 47, 5 या 15 माइनस 47 डबल 94 अपना आ जाएगा -79 आएगा, -79 सी। ठीक है, नैगेटिव आंसर आना सीगा, बट 2 ऑप्शन अपने को नैगेटिव सीगे तो आप कॉमन सेंस यूज नहीं कर सकते, अपन थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे वैल्यूज देख के लग रहा सीगा कि 47 -47 तो इतना छोटा नहीं होएगा, 79 आएगा। ठीक है, तो ये सीगा।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। Which of the following option gives the correct formula for finding the roots of quadratic equation of the form this? देखो जे quadratic equation बने पहले क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ quadratic equation ਜਨਰਲੀ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਰੂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ -b + ਮਾਈਨਸ 10th ਕਲਾਸ CBSE ਬੋਰਡ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 quadratic equation, ठीक है, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ मैंने 10th ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਹੀ ਸੀਗਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। -b + ਮਾਈਨਸ b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ਇਹ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾर्य ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਚਾर्य ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ, ठीक है, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਹੋ ਗਏ, ठीक है, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਟਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਏਗਾ being an Indian, श्री धराचार्य नाल जी लगाना हैगा, ठीक है, क्योंकि गुरु ने तो गुरु के नाल जी लगाना जरूरी होता है, गुरु के अगे श्री भी लगाना जरूरी होता, कला धराचार्य नहीं बोलांगे, श्री धराचार्य जी, ठीक है। उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कड्डन का फॉर्मूला दिता सीगा -b + माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, विच इज ऑप्शन ए। सिर्फ ऑप्शन ए ही ऐसा हैगा जो इस फॉर्मूला नू मैच कर रहा हैगा। इत्थे 4 नहीं हैगा तो ए नहीं हो सकता, इत्थे 6 हैगा तो ए नहीं हो सकता, इत्थे -b नहीं हैगा, प्लस माइनस तो हैगा b² - 4ac भी हैगा, पर b दे अगे माइनस नहीं हैगा तो ए भी नहीं हो सकता। सिर्फ ऑप्शन ए सैटिस्फाइड कर रहा है। क्लीयर? तो तुहानू ये पता होना चाहिए, तो अज ये नाम नोट कर लिया तुसीं, तुहानू ये पता होना चाहिए हैगा, ठीक है। ज़्यादा अंग्रेज बनने की लोड़ नहीं हैगी है, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो इंडियन ही रहो तो वधिया रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं होंगे, धराचार्य जी सूत्र होंगे ने वो। क्लीयर? तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। 20th, an item was sold at a profit of 12%. Had the item been sold for ₹180 more, the profit would have been 18%. The cost price of an item. देखो एक क्वेश्चन की हैगा, एक आइटम हैगी है, ठीक है, मस्त आइटम हैगी है, जो भी आइटम हैगी है आपां नूं नहीं पता, उसनूं मैंने सैल किया हैगा 12% प्रॉफिट ते, ठीक है। आइटम नूं मैंने, आइटम वर्ड गलत लिखता इन्होंने यार, चलो कोई नहीं, हुण लिखता तो लिखता, ठीक है। आइटम नूं आपां ने सोल्ड किया हैगा 12% प्रॉफिट ते। हैड द आइटम बीन सोल्ड, आप आइटम बार बार बोलते, मैं प्रोडक्ट बोल देना, हैड द प्रोडक्ट बीन सोल्ड फॉर ₹180 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 18%। मान लो एक प्रोडक्ट हैगा, उसनों मैंने पहला 12% प्रॉफिट ते सेल करता, सीपी नहीं पता, एसपी भी नहीं पता। जे मैं उसनों 180 रुपया होर महंगा वेचदा, जे मैं उसनों 180 रुपया होर महंगा वेचदा तो मैनू प्रॉफिट कितना होंदा? 18%। दसना की हैगा, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस दसनी हैगी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नूं, इस तरह के क्वेश्चन नूं आपां किवें सॉल्व करते हैं? सब तो बेस्ट तरीका हैगा लाइन मार के। इस तरीके के क्वेश्चन नूं आपां किवें सॉल्व करांगे? लाइन मार के। एक तो आइटम वर्ड आ गया, दूजा ये तरीका हैगा लाइन मार के। मैनू यही तरीका आंदा हैगा, होर कोई तरीका नहीं हैगा लाइन मार के, मैनू नहीं आंदा, ठीक है। मैं बेसिकली लाइन मार के सॉल्व करदा, आदत हैगी है, ठीक, आदत से मजबूर है, क्या करें। ये हैगा 0%, ये 100%, ये हैगी अपनी टोटल सीपी। हुण मैनू एक गल दसो, प्रॉफिट परसेंट जिहड़ा होएगा वो किस ते हुंदा हैगा? सीपी ते हुंदा हैगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट जो भी होएगा वो सीपी ते होएगा। तब पहला प्रॉफिट कितना हुंदा सीगा? 12%। हुण प्रॉफिट कितना होया? 18%। उरे देखो, पहला प्रॉफिट हुंदा सीगा 12%, हुण हो गया 18%। परसेंट विच कितना इनक्रीज हो गया? परसेंट पहला 12% सीगा, हुण 18% हो गया, तब परसेंटेज विच कितना हो गया इनक्रीज? 6% इनक्रीज हो गया, 6% प्रॉफिट वध गया। उरे आपां ने कितना महंगा बेचा हैगा? 180 मोर, 180 रुपए ज़्यादा महंगा बेचा हैगा आपां ने। परसेंटेज विच 6% ज़्यादा हो गया, रुपीज़ विच कितना ज़्यादा होया? 180 मोर। तो मैं ये कह सकता हैगा कि उरे रुपीज़ विच ये 180 रुपीज़ हैगा। इसका मतलब इनडायरैक्टली 6% की वैल्यू कितनी हैगी है? 180 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 बटा 6, 30 रुपए। 1% की वैल्यू 30 रुपए आ गई। भाई सीपी कितना होंदा? सीपी 100% ही होंदा हैगा,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾइस ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ। CP ਤਾਂ 100% ਰਹੇਗਾ, 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਰੁਪਏ, 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਗੁਣਾ 100 कितना आएगा 3000। ठीक है, तो 3000 ऑप्शन डी क्लियर। 1% की वैल्यू हैगी 30 रुपये, 100% की वैल्यू आ जाएगी 3000। ठीक है, 3000 का जो डबल कर दिए 6000 बन जाएगा। 6000 तो बहुत फेमस है, कमेंट सैक्शन से दसना 6000 फेमस क्यों है। ठीक है चलो अज का सैशन इत्थे ही ओवर करते हैं। क्लियर, आई होप सो थानू वधिया लग्या होना। ठीक है, छेती छेती क्वेश्चन निबड़ गए। क्वेश्चन तां छेती निबड़े ने क्योंकि ये विच वाले ਜਿਹੜੇ 10 क्वेश्चन ਸੀਗੇ ਉਹ एग्जामिनर ने ईजी पाए ਸੀਗੇ। ਹੁਣ अगले ਜਿਹੜੇ 10 क्वेश्चन है वो थोड़े टफ ने, तो वो आप अगली वीडियो में डिस्कस करांगे। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच।